Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. This is Sadaf Batul, President at the Rotary Club University of Agriculture, Faisalabad, Rotary International District 3272. I cordially welcome you all in this live scholarship webinar series. And for today's session, we have a very eminent speaker with us, Mr. Jahanzeb Ashraf. He did his BSc Honours and Masters from University of Agriculture, Faisalabad in Food Science and Technology. And now he's pursuing his PhD program from Institute of Food Science and Engineering at the University of Foga, Italy, and Aarhus University, Denmark. Because it's a joint project, so he's pursuing from two universities. And also he's working as a young researcher in European Corporation of Science and Technology under the theme of circular ability. He will guide you about the PhD, Masters, and other scholarship programs in the Italy. Over to you, sir. Thank you so much, Sadaf, and thank you, Hamza bhai, for inviting me here. And really, it's a pleasure for me to share my experience and some services for you. So we have very short times, so I will try to manage the things. So it's your responsibility to organize the meetings. I'm speedily going to the other things and manage the things. So let's start. Just let me share the screen because I cannot share. So. Okay. Is it okay? Yes, your screen is visible. Okay, thank you. Okay. First of all, good afternoon from Italy and good evening from Pakistan. As Mrs. Sadaf already introduced me, myself, Mr. Jahanzeb Ashraf. Currently, I'm doing PhD, second year PhD student at University of Foggia, and I'm also a collaborative student at Aarhus University, Denmark. And meanwhile, I'm also working as a young researcher at European Corporation of Science and Technology, and under the theme of circularity. It's a basically packaging project, food packaging projects. So let's start. So इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर कर सकें. इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी. मैं इसलिए ज़रा उर्दू के अंदर बात करूंगा ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकें. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस दे सकें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटी को हिंट कैसे किया जाता है. तो उसके रिगार्ड मुझे एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन होगी. देन मैं कुछ सैम्पल मटेरियल भी आपको शो भी करवाऊंगा. देन फर्दर मैं उसके लिए लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा. तो होपफुली इंशाल्लाह कि आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से. हमारे यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मेरी CGPA लो है, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी. सो वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. सो अगर आपकी CGPA लो है, मोर देन 3 है, इट्स ओके. इवन दैट 2.9 इज आल्सो ओके. तो आपने पहला जो फैक्टर लगाना है अपनी स्कॉलरशिप हटी के अंदर CGPA को कभी भी फिल्टर नहीं यूज करना कि आपकी CGPA 4/4 नहीं है तो लिहाजा आप स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपकी CGPA 2.9, 3 और 3.5 सो ऑन जितनी भी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप विन भी कर सकते हैं. सो लो CGPA इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो इग्नोर इट. तो अगर मैं इटली के बारे में स्पेसिफिक अगर बात करूं आज इस सेशन के अंदर, तो मैं जनरल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि इटली की PhD के सेशन होते किस तरह के, कौन कौन से मेजर है. अगर बात करें प्रोग्राम्स की, तो कोई भी ऐसा दुनिया का प्रोग्राम नहीं है कि जो इटाली यूनिवर्सिटी ऑफर ना कर रही है. तो यहाँ मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर जो प्रोग्राम के टाइटल्स होते हैं वो ऐसे हमारे तरह नहीं होते जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होते हैं कि PhD फूड साइंस, PhD एग्रोनॉमी, PhD क्रॉप साइंस. तो ऐसा नहीं होता. यहाँ पे जो टाइटल्स होते हैं प्रोग्राम्स के, वो एक मर्ज टाइटल होते हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करते हुए टाइटल डिजाइन करते हैं. लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो टाइटल है PhD का, मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम ऑफ मेडिटेरियन रीजन्स. सो उस पूरे के पूरे टाइटल के अंदर जस्ट एक फूड का वर्ड है और बेसिकली मैं बैकग्राउंड मेरा फूड साइंस है. तो बताने का मतलब ये है कि हर तरह का प्रोग्राम अवेलेबल है. टाइटल डिफरेंट हो सकता है लेकिन उस टाइटल के अंदर जो स्कोप है, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करनी पड़ेगी. इटली के अंदर, इवन दैट ओवरऑल यूरोप के अंदर, पूरे को पूरा यूरोप के अंदर एक कंसेप्ट. तो अगर बात करें PhD की, लास्ट ईयर 250 मोर देन 250 पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं इटालियन PhD के लिए. और जो इस दफा के फिगर्स है, होपफुली इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि 300 भी क्रॉस करेंगे. तो
just let me yeah. अच्छा, तो इस पीडीएफ फाइल्स के अंदर जो बेसिकली हम आपको बताएंगे कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा कहाँ से आपने सर्च आउट करनी है, डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी कौन से हैं, और देन आपने उसको प्रोसीड कैसे करना है। उसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं चैट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेटर मैं मजीद शेयर कर दूंगा। तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आप उस ग्रुप के अंदर अपनी जो भी क्वेरीज होगी आप वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे और जो भी क्वेरीज होगी आप फॉरवर्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो इन सारे एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। हम चलते हैं उन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली दो टाइप्स की है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम क्या कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन ए का नाम दिया हुआ है। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपके हाथ में एक दफा आ गए हैं तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स ए के अंदर बेसिकली ये आपकी सीवी है। यूरोप के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप सीवी डिजाइन करें तो यूरोपास फॉर्मेट है, बिल्कुल फ्री फॉर्मेट है। और यूरोपास के अंदर मोर देन 5 और 6 डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट अवेलेबल है। आपको यूरोपास के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, देन आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपनी सीवी को डिजाइन कर सकते हैं। जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस प्रोसेस के अंदर, लेटर ऑफ मोटिवेशन है। मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ इंटेंट भी बोलते हैं, रिसर्च स्टेटमेंट के नाम से बोलते हैं, डिफरेंट उसके नाम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है लेटर ऑफ मोटिवेशन इसको कहते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट सी होगा इसके अंदर। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं और रिकमेंडेशन लेटर्स भी बोलते हैं। ये अब आपने कहाँ से लेनी है, कैसे लेने हैं, ये हम फर्दर वन बाय वन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पीएचडी के केस के अंदर रिसर्च प्रपोजल है। मास्टर के केस के अंदर आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए। इटली के केस के अंदर जस्ट आपको मोटिवेशन लेटर और रिसर्च स्टेटमेंट समटाइम इस तरह की चीजें चाहिए होती है। तो रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं होता इटली के केस के अंदर, मास्टर की मैं बात करूँ। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करने पड़ेंगे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंटेशन बी के अंदर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए। बाद पासपोर्ट है, पासपोर्ट मैंडेटरी है। एप्लीकेशन के टाइम आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी स्टिल पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने आईडी कार्ड पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट जब प्रोसीड करेंगे तो आपको इश्यूज होंगे। तो बेहतर ये कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास अभी से पासपोर्ट होना चाहिए। पब्लिकेशन है, इट्स ओके, इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नहीं है तो इटली के केस के अंदर इट्स नॉट अ मैंडेटरी। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, उन्होंने पीएचडी अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, इटली की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप विन की है। पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन प्रोसीड करें अपनी, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हो के पोर्टल किस तरह के होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है किस तरह की, किस तरह की रिसर्च आपकी डोमेन के अंदर इटली के अंदर परसू हो रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं। देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, लेकिन पीएचडी केस के अंदर आइल्स का कोई रोल नहीं है, 0% रोल है। बेशक आपके पास 8 पॉइंट्स भी हो, डजंट मैटर्स, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ना ये मैंडेटरी है और ना ही ये वीजे के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर आप मास्टर की बात करेंगे तो आपका एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे हो जाएगा। लेकिन आपके जो वीजा प्रोसेस है पिछले 2 सालों से वो आर्ट्स नहीं, एम्बेसी आर्ट्स नहीं मांग रही आपके वीजे के लिए। लेकिन जिन बच्चों के पास आइल्स है उनका जो वीजा रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आप मास्टर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसको मतलब इस चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में कंसीडर रख सकते हैं। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंट स्कैन किससे करने हैं यार? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, मैं भी एज ए पाकिस्तानी हूँ, तो डॉक्यूमेंट स्कैन होने बहुत एक अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होना आपके पास बहुत जरूरी है। हम करते क्या है कि हम मोबाइल से कैम स्कैनर वगैरह से डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। पहली बात, हम उस तरह स्कैन कर ही नहीं पाते जिस तरह करने चाहिए। और देन जब मोबाइल से आप स्कैन करते हैं तो उसमें एक इशू ये होता है कि उसके जो साइज होता है फाइल का वो बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि पोर्टल आपको अलाउ नहीं करता कि 5 MB या 4 MB स्पेसिफिक साइज के बाद वो अपलोड नहीं करता। तब आप क्या करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं। जब साइज रिड्यूस करते हैं तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है, अनरीडेबल हो जाते हैं। तो आपने पहला ब्लेंडर ये नहीं माना। मेरी आपको ये सजेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप किसी फोटो कॉपी वाली शॉप पे जाएं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी क्वालिटी में स्कैन करें
और आपके पास ड्राइव में एक फोल्डर होना चाहिए और उसके अंदर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट विद नेम आपके पास सेव होने चाहिए। ये आपका पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन। आई एम सॉरी। देन उसके बाद अगर सीवी की बात करें तो सीवी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है यूरोप के अंदर, यूरोप पास है। इसका लिंक इस फाइल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन उसके बाद सीवी के अंदर आपने किस किस किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना है और किस तरह अपने कंटेंट को वहाँ पे मेंशन करना है, विद एग्जांपल मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर शो किए हैं, तो आप उनको देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। सबसे पहला सीवी के अंदर जो सेक्शन होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन होता है। इस सेक्शन के अंदर कुछ चीजें जो मैंडेटरी हैं जो कि आपने फिल आउट करनी है, लाइक आपका नेम लाजमी मेंशन होना चाहिए और एग्जैक्ट एज पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट। तो आपने समटाइम्स कुछ बच्चे मेंशन कर देते हैं विद कास्ट के साथ, मतलब अपना कास्ट का नाम लगा दिया, समटाइम्स एमडी शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर लेते हैं अपने नाम की, तो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं मानना। नेशनलिटी आपने लाजमी मेंशन करेंगे क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप नेशनलिटी के अगेंस्ट वो आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रैक होते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी होती है, जेंडर आप मेंशन करेंगे, ईमेल स्काइप आईडी अगर आपके पास है, क्योंकि जो वीडियो आपका इंटरव्यू होगा वो वीडियो किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, तो बेहतर ये कि आपके पास स्काइप आईडी होनी चाहिए। देन उसके अलावा आपका जितना भी एड्रेस है वो विजिबल होना चाहिए। जो एड्रेस आपने मेंशन करना है उसके अंदर आपको लंबी चौड़ी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मोस्ट हमें से बहुत से लोग गांव से हैं, उनको टाइटल कुछ अजीब से होता है, चेक नंबर फला 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 फला। इतनी लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उस गाँव का या आप उस टाउन का नाम लिखें। देन उसके बाद आपने पोस्टल कोड लाजमी मेंशन करना है जो कि मैंडेटरी पार्ट होता है। देन अपने सिटी का नाम और एट द एंड आप अपने कंट्री का नाम लिखेंगे। तो इधर यहाँ पे जो एक बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे एड्रेस के साथ लिख देते हैं होम, ये होम एड्रेस है। एड्रेस जो भी हो वो आपके होम का ही होता है आपके सीवी के ऊपर, तो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं मानना आपको। ये था पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपने कैसे मैनेज करना। देन आ जाता है एजुकेशन वाला सेक्शन। एजुकेशन के अंदर सबसे पहले जो आपने पॉइंट कंसीडर करना है कि आपकी डिग्री का टाइटल जो है ना वो आपने एज सच मेंशन बीएस और एमएससी की फॉर्म में मेंशन नहीं करना। बीएससी क्या एब्रिविएशन है ये मुझे और आपको जरूर पता है, लेकिन इटालियंस को नहीं पता क्योंकि इधर टाइटल ऐसे नहीं होते, और एमएससी का भी नहीं पता। तो आपने क्या करना है, जो कि आपकी डिग्री के ऊपर एग्जैक्ट टाइटल लिखा हो, लाइक बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ फिलोसफी, तो आपने ऐसे टाइटल वैसे ही कॉपी करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी उस यूनिवर्सिटी का नाम अवेलेबल होना चाहिए जहाँ से आपने डिग्री परस्यू की है। आपका फाइनल ग्रेड आपने मेंशन करने हैं इस सेक्शन के अंदर। अगर आप पीएचडी के एप्लीकेंट हो डेफिनेटली आपके पास थीसिस होगा, और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, आपके पास थीसिस नहीं है, किसी बच्चे का मास्टर विदाउट थीसिस है तब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इटली के अंदर, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर ये होता है। तो आपने अपने थीसिस का टाइटल लाजमी मेंशन करना है, थीसिस की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी मेंशन करनी है, और अपने सुपरवाइजर का नाम मेंशन करना है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपने जब भी कोई भी एजुकेशन का सेक्शन आपने फिल आउट करना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस और एमएस की लेवल इट्स इनफ, आपके एमएससी सॉरी एफएससी और मैट्रिक कंसीडर नहीं होंगे एवल्यूएशन के अंदर, तो ये दो जो लेवल है आपके इनफ है। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आप बीएससी अपनी एफएससी और मैट्रिक तीनों को मेंशन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन के अंदर आपने सेम आपने ऐसे ही करना है, बीएस के अंदर भी जितने भी आपकी एजुकेशन है सबको आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देन वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अब हम में से बहुत सारे लोग जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। अब वर्क एक्सपीरियंस को आपकी जो इंटर्नशिप होती है आप उसको एज ए वर्क एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आप 5वें 4थे 6थे सेमेस्टर में जो भी आपका सेमेस्टर है, आप कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन इंटर्नशिप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप मेंशन करते हैं, ऑफर करते हैं, तो आप वो इंटर्नशिप ले लेंगे तो आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है आप उसको कवर कर सकते हैं। जब वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करना है तो आपने उस आपका जो टाइटल था आप ड्यूरिंग जॉब, वो टाइटल आपने लाजमी मेंशन करना है। लाइक ये नहीं लिख देना इंटर्न, जो टाइटल था, लाइक मेरे केस के अंदर मेरा टाइटल था क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर इंटर्न, आपने प्रॉपर टाइटल मेंशन करना है। देन आपने उस एम्प्लॉइज इंडस्ट्री का नाम मेंशन करना है, किस सिटी से थी, किस कंट्री से, वो आपने मेंशन करना है। इस केस के अंदर मैंने ये सिटी और कंट्री सेपरेट लिखा है क्योंकि मैंने अपडेट नहीं की पीडीएफ, आई एम सॉरी, लेकिन आप इधर भी मेंशन कर सकते हैं कंपनी के नाम के साथ, जिस तरह लिमिटेड के बाद लाहौर और पाकिस्तान आपकी ये स्पेस कवर हो जाएगी, तो आपकी स्पेस भी लंबी नहीं हो जाएगी।
देन वहाँ पे आप इसके बाद हेडिंग देंगे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। तो आप उस हेडिंग के बाद 3 या 4, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 पॉइंट्स के अंदर आप अपनी उस जॉब एक्सपीरियंस को डिफाइन करेंगे कि आपकी क्या क्या वहाँ पे ड्यूटीज क्या थी। तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है। पब्लिकेशन है तो इट्स ओके। अब आप पब्लिकेशन, अगर आपसे एक से ज़्यादा आपके पास पब्लिकेशन है, तो अब ये यूरोपास के अंदर ये इश्यूज होते हैं कि जब आप 1 बाय 1 सेपरेट ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर देता है आपकी सीवी की। तो आपकी सीवी चली जाती है 5 से 6 पेजेस के अंदर। इस केस के अंदर 5 से 6 पेज वाली सीवी रिकमेंड नहीं होती। इस प्रॉब्लम को कैसे आपने ओवरकम करना है कि आपने अपने जितने भी आपके पब्लिकेशन है गूगल स्कॉलर से उसका रेफरेंस इंपोर्ट करना है। आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं, एपीए, एमएलए, चिकागो, हार्वर्ड, व्हाटसएवर, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देन आपने अपना जब रेफरेंस इंपोर्ट करना है तो जो भी नाम आपका होगा आपने अपने नाम को बोल्ड लाजमी करना है, जस्ट हाईलाइट करना है, ताकि आप शो हो कि ये जो पब्लिकेशन है किस नंबर पे आपका ऑथरशिप फॉर्म है, व्हाट्सएवर जो भी है। तो आप इस तरह अपने पब्लिकेशन वाले सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। देन सीवी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिकमेंडेशंस। आपने अपने 2 प्रोफेसर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो सीवी बहुत लंबी रहती है। 2 प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है एज ए रेफरी के तौर पे। उसमें अब आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, आपने अपना नाम, आपकी उस प्रोफेसर का नाम, उसकी पोजीशन कौन सी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, देन उसकी ईमेल आपने लाजमी मेंशन करनी है ताकि कांटेक्ट किया जा सके। तो ये थी हमारी सीवी। आई होप सो कि अब तक सीवी वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब सीवी के अलावा कुछ और, ये जस्ट एक मैंडेटरी हेडिंग्स थी, इसके अलावा कुछ ऑप्शनल हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आपके पास कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स हैं और इस तरह कोई भी चीज़ें हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं अपनी सीवी के अंदर। तो अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने वो पार्ट कंसीडर नहीं किया, जस्ट मैंडेटरी पार्ट को कंसीडर किया है। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो मैं आपको अपनी ओरिजिनल सीवी शो करवाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है जिनको आपने कंसीडर करना या मेंशन करना और कैसे मेंशन करना। देन मैंने अगली बात की थी कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रेफरेंस लेटर। अब आपने ये बनवाना कैसे है, आपने जहाँ से आपकी मास्टर या बैचलर की डिग्री है, हमजा भी अगर कोई भी, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, अगर मेरी आवाज़ में कोई इशू हो या मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो पहले मुझे रोक के आप बता सकते हैं क्योंकि मैं कमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा। तो जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इट्स होती है। परफेक्टली फाइन, आप ओके, कंटिन्यू थैंक यू करें। सो जी जी। मच। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर के अंदर मिनिमम आपको 2 लेटर चाहिए होते हैं। इटली के केस के अंदर होता ये है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपके जो प्रोफेसर है उसकी ईमेल आपसे पूछती है और नाम पूछती है, देन वो खुद आपको ईमेल करते हैं आपके प्रोफेसर को, और आपके प्रोफेसर को एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे जाके समटाइम्स आपका जो लेटर आपने साइन करवाया होता है आपने वो अपलोड करना होता है, और समटाइम एक प्लेटफॉर्म है पिसा का, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जिस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन होती है आपके प्रोफेसर की भी रजिस्ट्रेशन होती है, देन रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपके बिहाफ के ऊपर एक परफॉर्मर टाइप फिल करता है जो एमसीक्यूज टाइप होता है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक इसकी पीएचडी की मोटिवेशन कितनी है, लेबोरेटरी स्किल्स कितनी है, कंप्यूटर स्किल्स कितनी है, सो ऑन, इस तरह का परफॉर्मर फिल करना होता है। अब आपने क्या करना है, आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 या 3 लेने हैं। इटली की अगर आप स्पेसिफिक इटली की बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 4 से 5 प्रोफेसर से डिफरेंट कंटेंट का लेटर लिख के लिखवा लें, क्योंकि आपने मोर देन 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। तो एक ही प्रोफेसर बार बार आपका लेटर अपलोड नहीं करता क्योंकि वो भी बिजी रूटीन है, स्केड्यूल बहुत टफ होते हैं प्रोफेसर के। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट प्रोफेसर का नाम मेंशन करके आप मतलब रेफरेंस लेटर को ले सकते हैं। अब रेफरेंस लेटर के अंदर आपने जो एक बड़ी ब्लंडर जो हम पाकिस्तानी करते हैं, सॉरी हम भी मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कि हम क्या करते हैं, जो जिस दिन डेडलाइन होती है हम उस दिन एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं और उस दिन प्रोफेसर को मेल करते हैं सर काइंडली मेरा रेफरेंस लेटर अपलोड कर दें। तो ऐसा नहीं करना, एप्लीकेशन से एटलीस्ट अपने प्रोफेसर को 2 से 3 दिन आपने लाजमी देने हैं ताकि उसके पास उसके बिजी स्केड्यूल है ताकि वो आपका लेटर अपलोड कर सके। अब इसके अंदर होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूनिवर्सिटी का हेड, लेटर हेड लाजमी होना चाहिए उस लेटर के अंदर। जो जो प्रोफेसर लिख रहा है तो उसकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है उस यूनिवर्सिटी का लेटर यूज करना चाहिए। प्रॉपर साइन और स्टैंप होनी चाहिए उस लेटर के ऊपर। देन उसके अलावा डिटेल्स और रेफरी लाजमी होनी चाहिए जिसमें नेम, उसके ईमेल, उसका फोन नंबर, उसका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए। देन उसके अंदर आप उसका कंटेंट क्या आपने मेंशन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, स्पेशली इरेस्मस के केस के अंदर या मैरी क्यूरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ रेफरेंस लेटर होता है।
तो इस केस के अंदर आपने ये जनरल्स नहीं लिख के लेके आना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्रोफेसर कहते हैं कि लेटर लिख के लिए मैं साइन कर दूंगा, तो बच्चे क्या करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं और उठा के ले जाते हैं। उसमें जस्ट सही लिखा होता है कि बहुत एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, सो प्राउड ऑफ यू। इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी। आपने अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल्स है तो आप स्किल्स भी अपने लेटर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेसर आपके बिहाफ के ऊपर मेंशन कर सकता है कि ये बच्चा डिस्टिंग्विश्ड है क्योंकि इसने ये ट्रेनिंग की हुई है या इसके पास ये स्किल सेट है। तो उस लेटर के अंदर उसने उसकी कुछ आपने एबिलिटीज को मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि आपका थीसिस बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो थीसिस के बिहाफ के ऊपर आपकी रिसर्च स्किल को लिख सकता है कि इसका ये इतना आउटस्टैंडिंग रिसर्च स्किल्स है। तो देन उसके बाद आपने प्रोफेसर ने कुछ वीक पॉइंट्स भी समटाइम्स मैंडेटरी होते हैं लिखने, इस पॉइंट्स के अंदर वो वीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस स्टेज के ऊपर क्योंकि ये पॉइंट्स ज्यादा जरूरी है मेरी क्यूरी और ब्रेसमेंट्स वालों के लिए। ओवरऑल आप जस्ट एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। मैं आपके साथ सैंपल शेयर करूंगा, आप उससे आपको एक नजर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से कंटेंट मेंशन किए हुए। ओवरऑल गाइडलाइंस ये हैं, 3 पैरे होने चाहिए, लेटरहेड होना चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, उसके 3 पैराग्राफ हो, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड हो, आपको प्रोफेसर आपको कब से जानता है, आपकी वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, और देन उसके बाद इसको कंक्लूजन के अंदर वो आपको रिकमेंड करे आपके बिहाफ के ऊपर। ये मैं लिंक अटैच किया है, फेसबुक पेज का लिंक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक पूरा सेशन पड़ा हुआ है किस तरह का होना चाहिए। ये जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए, आपने फ्लॉवरी लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी। जस्ट दिखाने का मकसद ये है, हम ये नहीं लिख देना कि आप बड़े ही आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जस्ट एक मिड रेंज के अंदर है कि आपने विद ट्रेनिंग्स विद अपनी स्किल सेट के साथ आंसर करना है। सो नेक्स्ट है लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन लेटर्स के ऊपर हर बंदे के अपने व्यूज होते हैं। 2-3 स्टाइल्स को मोस्ट कॉमन स्टाइल्स हैं, मतलब कुछ लोग का अपना स्टाइल होता है, मतलब वैसे भी ये डिपेंड करता होता है कंट्री टू कंट्री और प्रोग्राम टू प्रोग्राम्स। ये जो कुछ मैं इधर अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ये जनरल मोटिवेशन लेटर की मैं इंस्ट्रक्शन शेयर करूंगा आपके साथ। फर्दर आप भी अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका मोटिवेशन लेटर पहली बात 1 पेज का होना चाहिए। अगर तो मोस्ट केसेस के अंदर उन्होंने वर्ड लिमिट डिफाइन की होती है, 500 वर्ड या 400 वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर लिखें। अगर वर्ड लिमिट नहीं मेंशन तो ट्राई करें कि आपका 1 पेज का होना चाहिए, 1 पेज से ज्यादा मोटिवेशन लेटर नहीं होना चाहिए आपका। आप अपने मोटिवेशन लेटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है कि आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप कैसे आंसर कर सकते हैं, आप अपने बैकग्राउंड का जो नॉलेज है, जो आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, उसके साथ रिलेट करके आप बता सकते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, या मतलब आप क्यों सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। देन अगले पैराग्राफ के अंदर आपने अपना जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी अचीवमेंट्स, आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपने बैचलर किया तो आप बता सकते हैं कि मैंने बैचलर इस सब्जेक्ट के अंदर किया, ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और ये मेरी लर्निंग्स थी, ये मेरी रिसर्च से पब्लिकेशंस व्हाट्सएवर जो भी आप मेंशन करना चाहें। तो आप यहाँ पे अपना एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड 3rd पैराग्राफ के अंदर मेंशन करें। लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन मार्क्स, उसके अंदर आप किस प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ड्यूरिंग पीएचडी या मास्टर आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी उस प्रोजेक्ट के ऊपर, या उस कंट्री के लिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन, आप उस कंट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। 1-2 सेंटेंस के अंदर आप चीजों को कंक्लूड करेंगे, इंशाल्लाह आपका मोटिवेशन लेटर हो जाएगा। इससे पहले मैं एक सेमिनार कर चुका हूँ डिफरेंट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करके आप किस तरह एक अच्छा मोटिवेशन लेटर डिजाइन कर सकते हैं। तो उस पूरे की पूरी मीटिंग का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आप डिफरेंट आर्टिफिशियल टूल्स को कैसे यूज करके अपना रिसर्च प्रपोजल या मोटिवेशन लेटर या जितने भी राइटअप का काम है कैसे कर सकते हैं। होपफुली वो आपको हेल्प आउट करेगा। देन सेम वही बात है कि आपने अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना, आपने ये डिफाइन नहीं करना कि यू आर बेस्ट कैंडिडेट्स। हम सब के अंदर, हम सब की जो मिस्टेक्स होती है एट द एंड हम अपने आप को ये कंक्लूड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय बैकग्राउंड, माय रिसर्च एक्सपीरियंस, मैं सबसे फिट वाला बंदा हूँ। नहीं, ये आपने डिसाइड नहीं करना, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आप इस प्रोग्राम के अंदर फुल फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ये उनको अलाउ करें ना कि आप खुद उसको ये कंक्लूड करके दें। मतलब आपने फ्लॉवी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। आपने उसको अपने बैकग्राउंड और प्रोजेक्ट को अलाइन करना है, देन उनको डिसाइड करने देना है कि भाई आप सूटेबल कैंडिडेट हो कि नहीं हो।
तो मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है उसके लिए ये एक पूरा सेशन है। सेशन के लिए मैंने यूट्यूब का लिंक देख दिया है। अगर आप ये लिंक्स बकायदा ओपन करके टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, आई एम श्योर, मैं कसम खा के भी कह सकता हूँ, अगर आप ईमानदारी से इन लिंक्स को फॉलो करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, कोई बंदा या कोई चीज़ भी आपको मतलब स्कॉलरशिप लेने से रोक नहीं सकती। मैंने अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट्स नहीं देखा जिसने प्रॉपर टाइम लगाया उसकी स्कॉलरशिप ना। हाँ, अलबत्ता रेयर केसेस के अंदर डिले जरूर हो जाती हैं चीज़ें, आपकी किस्मत भी एक फैक्टर है, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर अगर आप ईमानदारी से टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो होपफुली यू विल गेट समथिंग। सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च प्रपोजल के हवाले से सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि मतलब जब भी कोई हेल्प आउट करने के लिए, हेल्प लेने के लिए मैसेज करता है ना, तो ये नहीं कहता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे डिजाइन करना है। वो सबसे पहला क्वेश्चन करता है, काइंडली आप मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड कर दें एज ए सैंपल के तौर पर, तो ताकि मैं उसको देख सकूं। तो आपने जब भी किसी भी सीनियर को, किसी को भी अप्रोच करना है, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। अब किसी को अप्रोच करना ये भी बहुत बड़ी ट्रिक है। ये भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएगी और समझनी भी चाहिए कि आपने अप्रोच किसी को कैसे करना है। तो एक तो जब भी किसी को अप्रोच करना है उसके टाइम लाइन पर लाजमी ख्याल रखना है कि हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इटली के केस के अंदर हूँ, तो अगर आप मुझे फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे मैसेज करते हो, तो आपको अपने टाइम जोन का डिफरेंस है, तो आपको टाइम कंसीडर करना चाहिए कि मतलब टाइम उधर क्या हो रहा है, उस टाइम वो बिजी तो नहीं होंगे, लैब टाइम तो नहीं है। इस चीज़ को कंसीडर करना है, पोलाइट वे के अंदर रिक्वेस्ट करनी है। और पहले मैसेज के अंदर ये रिक्वेस्ट कभी नहीं कर देनी कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दें ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकूँ। तो उसको थोड़ा सा अपनी इनका शो करनी है कि मैं ये प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम का ये नाम है, ये मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है, इसके अंदर मुझे कंफ्यूजन है, इसके ऊपर मुझे गाइडलाइंस करें। जब आप रिस्पॉन्ड करें देन फर्दर आप अपनी कम्युनिकेशन को तो आगे लेके चले, देन उससे आप अगर कुछ पूछना चाहें तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी किसी से ये ना कहिएगा कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। सर इटली की अगर बात करें रिसर्च प्रपोजल के अंदर, तो इटली की जब भी पीएचडी की पोजीशंस आती हैं तो रिसर्च प्रपोजल के लिए उन्होंने आपको रिसर्च प्रोजेक्ट गिवन होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि इस डिपार्टमेंट की कितनी सीट है और देन कितनी रिजर्व सीट है, फॉरेनर्स के लिए कितनी है, इटालियंस के लिए कितनी है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसका थीम या टाइटल लाजमी मेंशन करना किया होता है। तो आपने इटली के केस के अंदर पहले कॉल रीड आउट करनी है, देन प्रपोजल को डिजाइन करना है। अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं किसी दूसरी कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी फैकल्टी को देखें, उस फैकल्टी के अंदर प्रोफेसर किस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी एक दो प्रोफेसर को टारगेट करें जो कि आपके बैकग्राउंड से मैच कर रहे हो। बैकग्राउंड से मैच करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे मैच कर जाए तो ज्यादा अच्छे है। तो आप उसको टारगेट करें, देन उसकी लेटेस्ट रिसर्च पेपर को फॉलो करते हुए आप रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करें, मतलब टॉपिक चूज करें कि आपने किस तरह का प्रपोजल बनाना है। ये हरगिज नहीं करना कि किसी सीनियर का प्रपोजल लेके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देना है। माइट भी पॉसिबल है कि वो प्रपोजल बहुत ज्यादा ही अच्छा, बहुत एफिशिएंट प्रपोजल हो, लेकिन एक एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस डोमेन के अंदर कोई बंदा ही काम ना कर रहा हो, तो आपके उस अच्छे प्रपोजल का कोई फायदा नहीं है। तो आपने इस केस के अंदर ये चीज लाजमी कंसीडर करनी है कि फैकल्टी मेंबर्स किस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, उसको कंसीडर करते हुए आपने टॉपिक को चूज करना होता है। हमजा भाई, मीटिंग 5 मिनट तक खत्म हो जाएगी, तो आई रिक्वेस्ट कि आप पे मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा। आप नई मीटिंग क्रिएट करके लिंक सेंड कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उससे ज्वाइन कर सकें, कोई रह ना जाए। जी जी, मैं क्रिएट करके भी शेयर कर देता हूँ। जी जरूर। देन रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट किस तरह का होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से कंटेंट कौन से होते हैं। सबसे पहले ये जस्ट एक बेसिक है, कुछ यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट भी होता है, उनकी हेडिंग डिफाइन होती है, लेकिन ओवरऑल जो आपको मेंशन करना है, तो ये आपके प्रपोजल के अंदर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। टाइटल होना चाहिए, टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वर्डिंग या मतलब कॉम्प्लेक्स एडवांस इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं, इटली के केस के अंदर तो स्पेशली। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि इटालियंस को इंग्लिश नहीं आती, वो हमें गुरु मानते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर आप ये शो करना चाहें कि आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, इनके मुकाबले में हम इनके वाकई ही गुरु हैं, तो आपने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है इटालियन को जब भी कंसीडर करना है, ताकि इनको समझ आ जाए। अदरवाइज ये बेचारे ट्रांसलेटर यूज करते हैं हमारे प्रपोजल को रीड आउट करने के लिए। तो इस चीज को थोड़ा आपने कंसीडर करना। टाइटल लाजमी होना चाहिए, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप
किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट बहुत अट्रैक्टिव हेडिंग है। अब इसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। स्टेट ऑफ आर्ट बेसिकली होता है कि आपके उस प्रपोजल या जो प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है और गैप क्या है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ आर्ट। ये बेसिकली मर्ज जो होता है इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू का, बजाय इसके कि आप दोनों सेपरेट हेडिंग दें, इंट्रोडक्शन दें फिर लिटरेचर रिव्यू लिखें, तो आप स्टेट ऑफ आर्ट की हेडिंग दें और देन उसके अंदर इन दोनों चीज़ों को मर्ज लिखें। अब ये कहाँ से पता चलेगा गैप किधर है, ये सारी चीज़ें। अगर आप कोई भी एक ऑथेंटिक जर्नल के पेपर लेना, उसका अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़े ना, तो वो स्टेट ऑफ आर्ट होता है। उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी लिखा होता है, उसने प्रीवियस स्टडी भी मेंशन की होती है और उसका गैप भी बताया होता है। अगर आप उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ज़्यादा अच्छे से अगर आप कंसिडर करें तो वहाँ से आपको स्टेट ऑफ आर्ट वाला पोर्शन मिल सकता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने लाजमी मेंशन करने हैं। मेथडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेथडोलॉजी है और आपको असेस भी मेथडोलॉजी की बेस के ऊपर किया जाता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस डोमेन के अंदर कितने अवेयर हैं। ये मेथडोलॉजी आपने बड़ी सोच समझ के 2-4 पेपर्स को फॉलो करते हुए और आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेथडोलॉजी के ऊपर। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर। टाइम टेबल्स, आप अपनी पीएचडी को मैनेज कैसे करेंगे। इटली के अंदर 3 साल की पीएचडी है, तो आप उसकी 3 साल की एक्टिविटी डिवाइड करेंगे। मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ, पहली दफ़ा अगर आप सुन रहे हैं तो मुश्किल ज़रूर लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सैंपल भी शेयर करूँगा ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक्सपेक्टेड आउटकम्स आप लाजमी लिखेंगे बेस्ड ऑन आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, उसकी बेस के ऊपर ही आपको प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेट ऑफ आर्ट में आपने लिखी है स्टडीज, उसकी बेस के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एट द एंड रेफरेंस। सैंपल का प्रपोजल का जो टेम्पलेट है ये इस लिंक के अंदर गिवन है, ये लिंक मैंने अटैच कर दिया है, तो आप इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फाइल्स मैं हमजा एक साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बता रहा था कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के बारे, तो आप मैक्सिमम ट्राई करें। कोर्सेरा के ऊपर 10 कोर्सेज का मतलब लिमिट लगाई, अब पहले कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट है, तो आप उस मैक्सिमम 10 के 10 को अचीव कर लें अपने फील्ड के रेलेवेंट जो कि एडवांस कोर्सेज है। यहाँ पे मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज ना। आपको मैंने सर्टिफिकेट इसलिए शो करवाया है आपको आप देख सकें किस तरह का सर्टिफिकेट और किस लोगों के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप ये कोर्सेज अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं और डिफरेंट जितने भी कैरियर आपके प्रोफाइल्स हैं उनके अंदर आप सब के अंदर मेंशन कर सकते हैं और ये इनकी आपकी एप्लीकेशन के अंदर वर्क होती है। स्पेसिफिक एसएमएस के अंदर या वॉलंटियर वर्क के जिस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी, तो आपके पास ये कोर्सेज होने चाहिए। देन यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स मेंशन किए हैं क्योंकि मैं बेसिकली फूड साइंस का हूँ। आई एम सॉरी टू से कि मैंने कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन उनके लिंक पेस्ट कर दिए हैं। अगर अब आपका काम ये है कि आपने गूगल के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म है आपने अपने कोर्स के रिलेटेड डिफरेंट ट्रेनिंग्स फाइंड आउट करनी है। ऐसी कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसके रेलेवेंट कोई ट्रेनिंग्स ना हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ्री ट्रेनिंग्स ऑनलाइन देती हैं विद सर्टिफिकेट, 1-2 घंटे के कोर्सेज भी देती हैं। तो आपके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्सेरा से हट के आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और कोर्सेज लेने हैं। ट्राई करें कि मैक्सिमम जितने भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप 5वें 6ठे सेमेस्टर में अभी तक हैं तो पब्लिकेशन तो इस स्टेज के ऊपर आप कर नहीं सकते। ट्राई करें कि पब्लिकेशन किसी न किसी तरह सीनियर के साथ एंगेज होकर करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि आपको बाकियों से डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। ये मैं कुछ लिंक पेस्ट किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जनरल स्कॉलरशिप मेंशन की हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन ये कोई मतलब ऑल ओवर द लिस्ट नहीं है, जस्ट फेमस वन जो मैंने मेंशन की है, मैरी क्यूरी हो गया, पाक यूएसए नॉलेज कॉरिडोर हो गया, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गया, मैक्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी स्कॉलरशिप है विच मेंशन की है, आप इन सब को माइंड में रखें। तो आप अगला क्वेश्चन था हाउ टू अप्लाई के लिए ये 2 लिंक मैंने मेंशन किए हैं ग्रुप के नाम, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग। फेसबुक के ऊपर सबसे जो पहला काम है, आज अभी इस मीटिंग के बाद आपने इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इसके ऊपर जस्ट ही स्कॉलरशिप के रेलेवेंट पोस्ट होती हैं, डिफरेंट क्वेरीज होती हैं। जैसे आप इनको फॉलो करेंगे आपको इससे रेलेवेंट पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे। जब आप वक्तन फवक्तन पोस्ट को देखते रहेंगे, क्वेरीज को देखते रहेंगे, तो आपको एक्सपोजर होगा किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट डिफरेंट वहाँ पे डिफरेंट जितने भी सीनियर जो पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी फील्ड के अंदर किस लेवल का काम हो रहा है, कहाँ का अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग। देन उसके अलावा इटली के केस के अंदर ये पहला लिंक मैंने दिया हुआ है www.bandi.me, और इसके ऊपर अगर आप इस लिंक को ओपन करें तो अभी तक जितनी भी पीएचडी की स्कॉलरशिप ओपन है सारी की सारी इस लिंक के ऊपर विद द डेट डेडलाइन के साथ मेंशन की हुई है। और यहाँ पे आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड के हैं, आप एग्रीकल्चर का फिल्टर यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर के रेलेवेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी के प्रोग्राम ओपन है उन सबको आपको शो करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही कीमती है, आप इसको संभाल कर रखिएगा। बाकी मैंने दोनों ग्रुप्स के लिंक भी मेंशन कर दिए, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। इटली की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जस्ट इटली के केस की बात करूँ, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इटली और थोड़ी बाकी चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी। मेरा चाइना और इटली का एक्सपीरियंस है तो मैं नेक्स्ट थोड़ा सा चाइना को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इटली के केस के अंदर आपको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन किए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिपेयर करें। देन मैंने अपनी मेल मेंशन कर दी, जीमेल वाली ऑफिशियल ईमेल। आई एम सॉरी टू से मैं मेंशन नहीं कर पाया यहाँ पे, और ना मैं कर सकता हूँ तो बम्बार्डमेंट हो जाती है। तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हैं और मैं वीकेंड के ऊपर अवेलेबल हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम लोगों के करूँ, तो होपफुली कि मैं सबका आंसर करूंगा। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करें तो इंशाल्लाह मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करूंगा, जो भी पॉसिबल सजेशंस हुए वो मैं आपको दूंगा, बेशक वॉइस नोट के अंदर तो या रिटन कमेंट्स की फॉर्म में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। देन यहाँ पे जो लास्ट एक स्लाइड है इसके अंदर ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मैं अनफॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब आपको पता हो ना कि इतना पैसा आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा तो आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो। इटली के केस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1200 यूरो मिलते हैं और सेविंग आपकी 1.5 लाख 1.2 लाख इतनी आपकी सेविंग है। आप इसको एज ए मोटिवेशन कंसीडर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं है बीएससी एमएस के बाद जो आपको इतनी हाई सैलरी देगी इतनी स्ट्रगल के बाद। तो आप इससे अच्छा है कि आप स्ट्रगल करें पीएचडी के लिए, एक तो आपकी डिग्री हो जाएगी और दूसरा आपकी 18वीं या 19वीं स्केल के ऑफिसर के बराबर आपकी पे होगी सेविंग के फॉर्म के अंदर। वैसे ओवरऑल तो ज्यादा बनते हैं, ये जो आपको सेव होंगे वो इतने होंगे कि आप 18 या 19 स्केल के ऑफिसर से कंपैरिजन कर सकते हैं अपने आप का। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन होता है कि मेरा मेजर अवेलेबल नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस किया है कि आपके कोर्सेज के जो टाइटल होते हैं वो थोड़े से मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। दैट्स एंड मेरी साइड से यही था। तो अब क्विकली मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स का सैंपल आपसे जो मैंने कहा था वो मैं शेयर करता हूँ, जस्ट स्क्रीन दोबारा शेयर करने दें, क्विकली एक नज़र आप देख लें, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपका सीवी किस तरह की होनी चाहिए, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने अपनी अपडेटेड सीवी मेंशन की है। अब जस्ट एक क्विकली नज़र मारे, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीज़ों को क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे ओपन करने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक विजुअल आपको आइडिया हो जाए किस तरह की सीवी होती है, डिज़ाइन कर सकते हैं आप। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सेम वही चीज़ें मैंने उनको अप्लाई की और आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोर्सेज आपके साथ ये सैंपल शेयर कर दूंगा, आपने परेशानी ना स्क्रीनशॉट नहीं लेना है सीवी के, मैं आपको सीवी शेयर कर दूंगा। एक चीज़ मैं मिस कर गया था कि आपकी सीवी के अंदर लैंग्वेज स्किल वाला पोर्शन मैंडेटरी होता है, आपने वो लाजमी मेंशन करना है, और ये मैंडेटरी पार्ट है यूरोस्पिन के, सॉरी यूरोस्पिन कह दिया, यूरोपास के फॉर्मेट के अंदर। तो आप ये लेवल मेंशन कर सकते हैं। मिनिमम आपका B2 लेवल होना चाहिए क्योंकि जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है ना उस चीज़ को क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है। आप इंडिपेंडेंट यूजर हैं, आप एग्जाम भी इंग्लिश में दे सकते हैं, आप मतलब स्पोकन भी इंग्लिश में कर सकते हैं, तो B2 इज इनफ। मैंने वैसे C1 लिखा हुआ, मेरे पास वो आयल्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ। स्किल सेट का पोर्शन है, आप अपनी स्किल मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये जो स्किल सेट वाला पोर्शन है ना, ये आपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज करते रहना है। और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल था लाइक एलाइजा, GCMS, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, तो आपने उनको ही टच देना है, जो जो चीज रेलेवेंट जस्ट आपने उनको ही चेंज करना है। देन ऑनर्स एंड अवार्ड, अगर आपके पास कोई मेडल है या कुछ आपके पास, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि लिखी हुई कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, नेटवर्क की मेंबरशिप ओके, ये मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं जो मैं आपको बता रहा था। मेरे केस में मैंने 5 किए, मेरी स्कॉलरशिप हो गई, देन उसके बाद मैंने छोड़ दिए।
लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने 10 के 10 करना। कुछ एब्स्ट्रैक्ट पब्लिकेशन और ये सारी चीजें मैंने ऐड की हुई। ये थी मेरी सीवी। देन उसके बाद मैं आपको एक ये रिकमेंडेशन लेटर है। मैंने जो चीजें बताई थी, लेटर हेड होना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे लेटर हेड लाजमी लगवाना है। आपका नाम वहाँ पे लाजमी मेंशन होना चाहिए। प्रोफेसर को कहें कि वो ये ना लिख दे ही शी, आपके नाम के साथ लिखे तो ज्यादा अच्छा है। मेरे केस के अंदर मेरे पास कुछ डिस्टिंक्शन थी, मेरे पास मेडल था, तो मैंने इस चीज को हाईलाइट करना मुनासिब समझा है, क्योंकि मेरे पास वाकई ही मेरी एकेडमिक अचीवमेंट है। अगर आपके केस के अंदर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने अपनी लेबॉर्ट्री स्किल्स को शो करने के लिए मैंने प्रोफेसर को ये लिख के दिया कि मेरे पास एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग की बेस के ऊपर मैंने डिफेंड किया कि मेरे पास मेरी जो फील्ड के अंदर रिसर्च स्किल्स हैं। तो ये ओवरऑल इसको मैंने कंक्लूड किया। फाइनल मार्क्स के अंदर यहाँ पे आपके सिग्नेचर स्टैम्प आएगी। आपने ईमेल मेंशन करनी है, और ईमेल आपने हमेशा इंस्टीट्यूट वाली ईमेल मेंशन करनी है। जीमेल, हॉटमेल, ऐसी टीचर्स की नहीं मेंशन करनी। जो उनकी ऑफिशियल ईमेल होती है आपने उसको मेंशन करना है। तो मेरी तरफ से ये था। अब अगर आप क्वेश्चंस हैं तो वन बाय वन आप वो हाथ खड़ा करें, और मतलब भाई आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप जिसको कॉल करेंगे तो अगर आप एक बार सबको अलाउ कर देंगे तो मैच क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी पॉसिबल हुआ मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। ग्रुप के लिंक भी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी जहांगीर पर वन बाय वन इन्होंने हैंड रेज किया, उनको अनम्यूट करो। एमन सुल्तान। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो जी मैंने ये जी पूछना था कि मेरा ख्याल अभी तो इटली की स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है शायद मास्टर्स में ना, तो अभी 6 मंथ्स हैं दोबारा अप्लाई करने के लिए नवंबर दिसंबर में। तो उससे पहले पहले कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एक वो बता दें, और दूसरी बात ये है कि क्या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, और तीसरी बात ये कि आइल्स के अगर आइल्स नहीं है तो क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक इटली की बात करूं, आई एम सॉरी टू से, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं बच्चों को जब भी कोई मास्टर का मेरे पास एप्लीकेंट रहता है, तो मैं उसको उन सबको ये रिकमेंड करता हूं कि मास्टर के लिए इटली आपके पास प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं इटालियन मास्टर के अंदर। एक तो वीज़ा रेशो कम है, आपको बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है, देन उसके अलावा आपको कुछ इनकम सर्टिफिकेट है बीआर से बनवाने पड़ते हैं। मास्टर के केस के अंदर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है, और मतलब थोड़े से चीजें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। वीजा रेशो कम है एज कम्पेयर टू पीएचडी। पीएचडी केस के अंदर 100% है। लेकिन अगर अब मैं बता देता हूँ, अगर आप इटालियन मास्टर को परसू करना चाह रही हैं तो नवंबर दिसंबर के बाद जो है, जब इनका नॉर्मल इनटेक खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है दिसंबर के बाद एडमिशन ओपन कर देती हैं। तो यूनिवर्स इटली का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाके आप इंग्लिश कोर्सेज देख सकते हैं। जितनी भी इटालियन यूनिवर्सिटी जो मास्टर के अंदर इंग्लिश कोर्स ऑफर कर रही हैं, आपने सबसे पहले वो पॉइंट कंसिडर करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में मास्टर ऑफर कर रही है। उसको कंसिडर करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर एडमिशन आपका हो जाता है। पिछले 2 सालों से आयल्स नहीं चाहिए एम्बेसी के अंदर, उससे पहले मैंडेटरी था। अब आपका जेरे के अंदर एप्लीकेशन सबमिट होती है तो आपको आयल्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आयल्स होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड आप मास्टर केस के अंदर आइल्स लें, ताकि आप आपकी जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है इरास्मस के केस के अंदर या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, आप उनमें मैक्सिमम अप्लाई कर सकें। मास्टर केस के लिए मैं आपको एक ये भी रिकमेंड करूंगा, आप इटली के साथ साथ चाइना, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें लाजमी अप्लाई करें। ये कंसेप्ट माइंड से निकाल दें कि हमारे पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है कि चाइना नहीं जाना। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, वो पहली बात कहते हैं सर चाइना नहीं जाना, उसके अलावा बता दें। मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो रिसर्च है, मैं बेसिकली एक्स चाइनीज स्टूडेंट हूँ। मेरी पहले पीएचडी हैनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से है। तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यूरोप में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो चाइनीज स्टैंडर्ड को अप्रोच करे इन टर्म ऑफ रिसर्च, इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की फैसिलिटेशन। अगर आपका मास्टर चाइना, थाईलैंड, कोरिया, इन कंट्रीज से है तो कोई भी आपको एक अच्छी पीएचडी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर सकते हैं। इतना अच्छा वो आपको रिसर्चर क्रिएट करेंगे।
आई वुड रिकमेंड कि आप इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करें। जी नेक्स्ट। इरफान अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने बीएस किया है तो उससे डायरेक्ट हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इटली में, क्योंकि कुछ ऐसी होती है यूनिवर्सिटीज जहाँ बैचलर्स के बाद डायरेक्ट हम पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पब्लिकेशंस एज सच मेरे पास 2 रिव्यू आर्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें मेरा ऑथर नेम जो है वो एक 6th पे और एक 8th पे है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं मेरे पास वो भी पब्लिश नहीं हुए ना। चैप्टर्स को जब हम करते हैं तो उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, वो एज अ फर्स्ट और सेकंड ऑथर है मेरे पास, तो उनको मैं सीवी में मेंशन करूं या ना करूं, और अगर करना है तो वो कैसे कर सकती हूँ मैं? आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी टू जमीन का पहला क्वेश्चन। मैं कॉल में करता हूँ, सॉरी मैं भी कॉल पे था। अनम्यूट कर ले। ऊपर मास्टर के केस के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पब्लिकेशन एज ए फर्स्ट ऑथर हो, जिस भी नंबर पे है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स मोर देन इनफ। आपकी 1-2 पब्लिकेशन है मास्टर के लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप और चाइना का जो पर्सपेक्टिव है पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप 10 पब्लिकेशन के साथ एज ए बीएस का बंदा आएगा ना, तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चनिंग होगी कि आपने 10 पब्लिकेशन कैसे कर लिए हैं, इसको डिफेंड करें, तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इटली के केस का, चाइना के केस के अंदर तो वो चीजें समझ आती है क्योंकि उनमें कोलैबोरेशन का कंसेप्ट है, लेकिन इधर कोलैबोरेशन का कंसेप्ट नहीं है। 2-3 पब्लिकेशन है देन इट्स ओके। बाकी बुक चैप्टर अगर आपके पब्लिश नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि अभी तक उनको मेंशन ना करें, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास उनके ऑथर की डिटेल और बाकी उस पब्लिशर का नाम और एक साइटेशन आप जनरेट कर सकते हैं उनकी, तो आप मेंशन कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। ऑरेंज से जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमारे एक पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू हम ऑनलाइन डीजी स्किल्स के थ्रू हम सॉफ्ट कोर्सेज सीखते हैं, फ्रीलांसिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज भी हम मेंशन कर सकते हैं अपनी सीवी में मास्टर के लिए। देखे ना, आपने जब सीवी मेंशन करने ना, आप एकेडेमिया की तरफ आ रहे हैं, अगर तो वो कोर्सेज आपके एकेडेमिया के अंदर कोई रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस है और आपने वो मैटलब पाइथन वगैरह के जो डीडी स्किल से कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी अलबत्ता नहीं भी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। बेहतर ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो कोर्सेज है उनको, उनके सर्टिफिकेट्स लें, उनको मेंशन करें। सादिया रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एमफिल किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में युवास से, और मेरा 3.91 सीजीपीए था। अब मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैंने ब्लोगना में भी किया था रिसेंटली, और मैं बाकी जगहों पे भी देख रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुझे इशू आ रहा है वो रिसर्च प्रपोजल का आ रहा है, जिसकी वजह से पहले ही मैं पिछले साल अप्लाई नहीं कर सकी थी, क्योंकि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज जो बाहर अच्छे समझे जाएं वो हम लोगों के पास नहीं होते। और अपने टीचर से भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, तो वो बस एक थोड़ा बहुत बस जान छुड़वाने के लिए कुछ बता देते हैं, इस पे देख लो, उस पे देख लो, और मुझे फिर ना डेडलाइन गुजर जाती है, मैं कोई अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाती। क्योंकि आप भी फूड से रेलिवेंट आपकी फील्ड है, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से गाइड कर देगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। अक्सर होता है रिसर्च पेपर्स पढ़ के भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इसमें क्या इनोवेटिव चीज़ कर सकती हूँ। सेकेंडली ये कि फूड की फील्ड से रेलिवेंट जैसे मेरा डेयरी है, तो इटली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मुझे टारगेट करना चाहिए जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ की रिसर्च बहुत अच्छी है। और थर्डली ये कि अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है विद इन सेम ईयर, तो वीज़ा प्रोसेस में क्या इशू होता है? क्या वो मुझे जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि या तो ना जाओ इटली, और अगर जाना है तो फिर जल्दी शुरू कर दो, एक्सेप्टेंस का इंतजार ना करो, और इस तरह की चीज़ें। थैंक यू। अच्छा, जैसा आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद प्रेजेंटेशन में ये बात बताई थी कि पीएचडी के केस के अंदर
आप प्रपोजल डिफाइन नहीं करते। मोस्ट केसेस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ने एक थीम दिया होता है, एक टाइटल दिया होता है, उस टाइटल के अगेंस्ट आपको प्रोजेक्ट डिजाइन किया होता है। रिसर्च प्रपोजल एज सच यहाँ पे ये नहीं होता कि आप इधर आके रिसर्च परस्यू करेंगे। जस्ट वो आपसे इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एवेलुएट करते हैं कि आपकी रिसर्च राइटिंग एबिलिटी कितनी है। तो अगर आप डेयरी की बात कर रहे हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज आप देखें, लाइक अभी नेपल्स फेडरिको है, उसके अंदर फूड साइंस का प्रोग्राम है, या मतलब इस तरह के डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। तो आप जब यूनिवर्सिटी की कॉल रीड आउट करती है ना, तो आज एक तो आप पहली बार इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होना कि आप पीछे से डेयरी कर गए तो अगला प्रोजेक्ट भी आपका डेयरी को, ऐसा नहीं होना। आप उसको चेंज कर सकती हैं और ये होगा, क्योंकि डेयरी का बहुत कम प्रोजेक्ट नजर आते हैं पीएचडी के अंदर, क्योंकि मैं भी इन टच चीज़ों में मुझे आइडिया है। तो जब भी आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, आपने उस थीम और उस टाइटल को टारगेट करना है। अगर टाइटल और थीम अवेलेबल नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो प्रोफेसर है उसको देखना उनकी डोमेन किसके अंदर है, उनके कीवर्ड गूगल स्कॉलर पर डालने हैं और मोस्ट रेलेवेंट 2 से 3 पेपर आपने डाउनलोड करने हैं जो उस प्रोफेसर की डोमेन के साथ मैच कर रहे हैं या उस थीम के साथ मैच कर रहे हैं। देन आप उसको मर्ज कर देंगे ना अच्छी तरह समझ के 3 पेपर्स को। ये जस्ट एक शॉर्ट करता है, वैसे एक अच्छा वे तो नहीं है, लेकिन इस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब 2 पेपर स्क्रीन आउट कर लेते हैं, ये पेपर्स आपको इस थीम के अकॉर्डिंग बहुत ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना तो आइडिया होता है, आप थीसिस करके आए होते हैं। अगर आप उन दोनों पेपर्स को मर्ज कर देना तो आपका बहुत अच्छा प्रपोजल डिजाइन हो सकता है। कुछ पार्ट आप एआई से भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दोनों पेपर्स का मर्ज कर दें। मेथोडोलॉजी 2 कॉमन जो मेथोडोलॉजी है आप उनको यूज करके उसका फ्लो चार्ट बना दें और देन जो उसका गैंट चार्ट ऐड करके स्टडी प्लान ऐड कर दें। तो आई थिंक सो कि जो आप 2022-23 का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो वो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। इस लेवल के ऊपर आप एज सच कोई नई बिल्कुल डोमेन आप ला भी नहीं सकते और ना ही वो एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जब उस फील्ड का बंदा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल स्कॉलर या स्कोपस के ऊपर या 2 एआई टूल्स हैं, मैं उसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ, साइज स्पेस हो गया या रिसर्च रैबिट होगा, कीवर्ड यूज करके 2 मोस्ट रेलेवेंट पेपर फाइंड आउट करें, देन उसको मर्ज कर दें। प्लेजरिज्म 20% से नीचे होना चाहिए, राइट अप थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करनी चीजें आनी चाहिए। दूसरा बात, जो यूनिवर्सिटीज हैं मैंने आपको लिंक सेंड किया है, ग्रुप के पीडीएफ के अंदर भी मेंशन है। अदरवाइज वर्जन 7 के नाम से एक पीडीएफ फाइल हम क्रिएट करते हैं, वो स्कॉलरशिप नेटवर्क डॉक्टर वकार बेग साहब, उसके अंदर सब यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन होते हैं, डेडलाइन मेंशन। ये आपको स्क्रीन आउट करना पड़ेगा किस किस यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका प्रोग्राम है। मैं जनरली आपको बता देता हूँ, ऐसे मेरे माइंड में कुछ नहीं है। लाइक नेपल्स फेडरिको के अंदर आपका प्रोग्राम होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुलीजे के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीने के अंदर एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ खोजा के अंदर है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अंदर है, उदीने के अंदर है, कतानिया के अंदर है। मतलब मोर देन मेरे पास लिस्ट है फूड साइंस की, मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन किया, अगर आप उसको ज्वाइन कर लें और रिमाइंडर दे दे तो मैं लिस्ट दोबारा सेंड कर दूंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सबके अंदर ही फूड साइंस है, लेकिन आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ऐसा टाइटल नहीं मिलेगा पीएचडी इन डेयरी साइंस, पीएचडी इन फूड साइंस, मल्टी डिसिप्लिनरी कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर भी आपको लगता है कि आपके इस फील्ड के अंदर आपकी सर्च मैच करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात रही वीजे की, तो पीएचडी के केस के अंदर वीजा रेशो 100% है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है ना तो आपको वीजा मिलेगा, हर सूरत में वीजा मिलेगा। लेट जरूर हो जाती है, हर दफा एम्बेसी थोड़ा डिले कर देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अब अप्लाई करती हैं और आपका एडमिशन अब बार साइकिल में हो जाता है, जिस तरह फडोवा का रिजल्ट 1-2 डिपार्टमेंट का अनाउंस हो गया, तो इन लोगों को वीजा दिसंबर तक मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट और सारी चीजें। और जिनका दिसंबर जनवरी में होगा उनको वीजा जून तक, मार्च या अप्रैल तक मिल जाएगा। पीएचडी के केस के अंदर 100% वीजा रेशो है, आपका एडमिशन नहीं कैंसिल होगा। एक यूनिवर्सिटी ने इस समय 1-2 केसेस आए हैं कि लेट होने की वजह से एडमिशन कैंसिल किए, लेकिन अदरवाइज 99% यूनिवर्सिटी इस बात को समझती है कि एम्बेसी की तरफ से इशू है, वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करती पीएचडी के अंदर। तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप पीएचडी के एप्लीकेंट है। नेक्स्ट अरूबा। जी जफर भाई, मैं ये पीएनआर वाले मैंने इसलिए मेंशन किया कि 2-4 बच्चों के वाकई ही कैंसिल हुए हैं ये एडमिशन, जो ज्यादा लेट हो गए हैं। इस केस के अंदर अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, एम्बेसी का रोल है। अगर उनके सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट करें, लाइक जिस तरह अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेंटो वाले सिलेंडो वाले हैं, इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अप्रोच करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। अभी मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने इस दफा ऐसे किया है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एम्बेसी को अप्रोच करके डिपार्टमेंट सब बच्चों की इकट्ठी लेके दिए अपॉइंटमेंट। तो अगर आप कोऑर्डिनेटर से इन कॉन्टैक्ट रहते हैं मोस्ट केसेस के अंदर तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिल जाती है।
तो इतना ऐसा पीएचडी के अंदर इशू नहीं है, पीएचडी के अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी आपकी फंडिंग एडमिशन हो, आप अपने डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर दें, अपनी समरी फॉरवर्ड कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपकी टेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, हर चीज रेडी हो। जैसे ही एडमिशन लेटर है आप फॉर अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर दें ताकि आप मैक्सिमम आपको टाइम मिल जाए। जी नेक्स्ट, आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। बोलोनिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था और जो रिसर्च प्रपोजल मैंने बनाया था वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही था जो आपने शो किया है उसके मुताबिक। लेकिन हुआ ये है कि मेरे रिसर्च प्रपोजल के मार्क्स 0 लगे हैं, जो कि मुझे आइडिया नहीं है कैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कल भी ग्रुप में भी हम एड्रेस कर रहे थे। जफा भाई इसके ऊपर बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जिन बच्चों ने भी ये क्लेम किया ना मेरा प्रपोजल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग था, यकीन मानिए मैंने 8 से 10 बच्चों का प्रपोजल पर्सनली मंगवाया इनबॉक्स के अंदर और चेक किया, वो नहीं था। कवर पेज के ऊपर सबसे पहले तो आपने मेंशन करना था अपना आपका प्रोजेक्ट किस डोमेन के साथ मैच कर रहा है। तो कई बच्चों ने वहां पे 2-2 टिक लगाए हुए हैं। एक तो रिजेक्शन की वो वजह भी बनी है, प्रपोजल आपका किसी डोमेन का आपने देखा कि रेलेवेंसी है, आपने 2 पे टिक कर दिया, रिजेक्ट। देन उसके अलावा कुछ बच्चों ने अपनी हेडिंग्स अपने तरफ से क्रिएट की हैं, लाइक स्टेट ऑफ आर्ट के अंदर हेडिंग्स दिए हुए, इंट्रोडक्शंस की, लिटरेचर रिव्यू की, और कुछ अपने से एड अप किया हुआ है। करेक्टर्स ज्यादा हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई एम 100% श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे अपना प्रपोजल सेंड कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है। ऐसा नहीं हो ओके, सकता मेरा क्योंकि एक और वैसे क्वेश्चन भी है, एक और जी क्वेश्चन जरूर। भी है। अक्सर ऐसे होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है, तो क्या एज जी जी सच हमें बिल्कुल। उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना होता है या कुछ स्पेसिफिकेशंस की जा सकती हैं उस हवाले ये से? बात मैंने पहले भी की थी, जब आपके पास जनरल थीम आता है ना, उस केस के अंदर आपने उस थीम के अंदर अब आपको फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शनल फूड का टॉपिक आ जाता है। अब फंक्शनल फूड के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस में काम करना है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आप फैकल्टी देखनी पड़ेगी कि उस फैकल्टी के अंदर फंक्शनल फूड के अंदर किस डोमेन में काम हो रहा है। जब आपको ये पता चलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल बनाएंगे, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज जनरल फंक्शन फूड में से कोई अपनी मर्जी का लेके कर देंगे तो हो सकता है कि उसके जरूरत बंदा ही ना हो। तो इस केस के अंदर फैकल्टी को आप लाजमी विजिट करें। हर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और उसकी जो रिसर्च डोमेन है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी बचे हैं तो मैक्सिमम। जी नेक्स्ट, हमजा भाई बताइएगा। अरूबा शायद ये होगी, राबिया नाज। तो जी अभी आपकी माइक के अंदर इशू है। आपका टर्न है। आप अपने मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन, हम उसको अंदर भी एड्रेस कर सकते हैं अगर माइक का इशू है तो नो प्रॉब्लम। सर अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ वालेकुम। बेनाज। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। सर मैंने अभी रिसेंटली है ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ना मेरी मतलब एमएससी मेरा कंप्लीट हुई है। मतलब अभी चल ही रहा है, थीसिस सबमिट करवाना है अब हम लोगों ने। तो मैंने ये पूछना था कि इनकी किस मंथ में ये इटली की स्कॉलरशिप आती है? स्कॉलरशिप पीएचडी के केस के अंदर अभी तक ओपन है और स्टिल दिसंबर तक ओपन रहेंगे एडिशनल कॉल्स। अगर आपने थीसिस सबमिट करवा दिया है, आपके पास 3 सेमेस्टर की डीएमसी है, तो आप होप से सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकती हैं और अभी अप्लाई करना चाहिए आपको। मेरा भी एडमिशन होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर हुआ था, तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आपका अक्टूबर तक रिजल्ट है, वेटिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। आई एम सॉरी टाइम शॉर्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम दे। बाकी ग्रुप के अंदर आप जो भी पूछेंगे इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज अवेलेबल। उसामा वही इधर उजैफा भाई ने वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन जहाँ से भाई ये है कि एमएससी के लिए जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देती है, तो ये इशू आ रहा है सुनने में। जी और कंटिन्यू करें आप। कोर्सेज से कोर्सेज किए हैं ऑनलाइन, उनको हम एजुकेशन में मेंशन करें या सेपरेट कोर्सेज की हेडिंग दे के मेंशन करें? पहली बात रही एम्बेसी वाली, तो यार एम्बेसी का जो इशू है उस
में मैं और आप कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ आप क्या कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस या मतलब क्या कहते भी कह सकते हैं हम, सॉरी मेरे को वर्ड मुंह में आ रहा, कि वो यूज करें। आप ट्राई करें कि एज सुन एज एडमिशन ओपन हो तो आप पैसे अप्लाई करके एज सुन एज पॉसिबल अपनी समरी फॉरवर्ड करवा दें, ताकि मैक्सिमम टाइम मिले आपको एम्बेसी के केस के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए। बस ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जारी रखें, किसी टाइम ही मिल सकती है, तो मतलब इस केस के अंदर आपको ये चीजें हो सकती हैं। बाकी दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कोर्सेज, आप सीवी के अंदर एक सेपरेट हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ई कोर्सेज के नाम से, मॉक के नाम से, ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं जी। ठीक नेक्स्ट। है, तो आपने जो बताया है कि 10 कोर्सेज कर सकते हैं, तो उसके बाद हम मतलब दोबारा से न्यू अकाउंट बना के एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकेंगे, या क्या लिमिट है 10 वो कोर्सेज किसका? जीमेल, डिफरेंट जीमेल यूज करके आप डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं, और एक जीमेल के ऊपर आप 10 कोर्स कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और जैफा भाई बता रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वैसे मुझे भी पता चला था कि एम्बेसी सोन मतलब बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट वाला जो इशू है ना, एक नए तरीके से अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट आ रहा है। आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिला करेगी, तो होपफुली कि नेक्स्ट इन फ्यूचर ये वाला इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। उमर फारूक। जी आई थिंक सो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। हमारे पास ये 4 मिनट बाकी बचे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ये बता दें कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर कितना वैसे खर्चा आता है, ये आपकी जब मास्टर की स्कॉलरशिप लगती है या पीएचडी की। और दूसरा एक ये बताना है आपने कि जब हमने तो अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई करें ना स्कॉलरशिप के लिए, तो हम मतलब किस तरह की अपने आप को रेडी करें, किन चीज़ों पे, किन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इटली का आपने बोला है कि वो चांसेस कम है मास्टर के लिए। तो इसके अलावा एक पाथ लाइन जो है वो हमें थोड़ा सा गाइड आप कर दें कि हम किस यार मास्टर के केस के अंदर मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि एक तो अपनी सीजीपी को इम्प्रूव करें, अभी तक अभी डिग्री कंप्लीट है, कोर्सेज ऑनलाइन करें, डिफरेंट ट्रेनिंग्स लें, और देन उसके अलावा इटली को आप कंसीडर करें। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप इटली में अप्लाई ना करें, आप करें अप्लाई, लेकिन उसके साथ साथ आप चाइना की मोस्ट कॉमन जो स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप, जो सितंबर में ओपन होने वाली है, आप अगस्त में एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें। कोरिया की स्कॉलरशिप, प्रोफेसर स्कॉलरशिप है, उसको आप लाजमी ट्राई करें। एक थाईलैंड की स्कॉलरशिप है, मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप है चोलागोंग यूनिवर्सिटी की, और उसको आप लाजमी अवेल करें। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, चाइना, इनका जो मास्टर है ना, इनकी यूनिवर्सिटीज इटली से अच्छी है। मैं आपसे ये एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप क्यूएस रैंकिंग निकाले ना, तो टॉप इटली की 2-4 यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आती हैं। चाइना की निकाल के देखेंगे तो 15 यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। बाकी ये 2 मिनट मैं जैफा भाई को देने लगा हूँ, मास्टर के ऊपर वो बात करेंगे। जैफा भाई जरा 2-3 मिनट रह गए मीटिंग के, इसको देखिएगा जरा। हाँ, थैंक यू वेरी मच जहांदेव भाई, शुक्रिया आपका। एक्चुअली शुरू में तो काफ़ी टाइम जो है ना वो तो म्यूट में गुजर गया था, मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो असल में कुछ लोगों का मसला था, कुछ लोगों का नहीं था। तो और शुरू में भी एक्चुअली मैं सफ़र में था थोड़ा, तो फिर अभी एक जगह पे बैठा हूँ। इस तरह है कि आप लोग थोड़ा सा ना ये इनको थोड़ा सी चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए, मास्टर स्कॉलरशिप को और पीएचडी को, और सेकेंडली स्कॉलरशिप और एक स्पेसिफिक पोजीशंस हर यूनिवर्सिटी में और हर मुल्क में। मैंने अभी रिसेंटली भी लोगों को बताया था कि हर यूनिवर्सिटी में और हर मुल्क में कोई भी एडमिशन होता है इंटरनेशनल के लिए, उसके अंदर स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो वो लोग वो टारगेट नहीं करते, लोग कहते हैं कि जनरल स्कॉलरशिप्स पे हम जाएं, मतलब जनरल को देख के आप छोड़ें। अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो आप हर कोर्स के अंदर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है, बादवा में, मिलानो में, हर जगह पे। तो वो एक तो टारगेट करें। दूसरा प्रोफाइल में एम्बेसी का मसला है, तो एम्बेसी में आजकल असल में उनका एक जारी के साथ ना अदालत में केस चल रहा है इधर इटली में, तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो इतना मसला नहीं है। और बाकी जो बात रही अभी रिसेंटली कल बलोनिया का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो तबाही हुई है पाकिस्तानियों की, तो उस पर अलग से बात की जा सकती है, ठीक है। मैं कल बैठा हुआ था प्रोफेसर के पास, तो प्रोफेसर बड़ा हंस रहा था इवन ना, तो कुछ वो भी दिखाए हैं, कुछ रिसर्च प्रपोजल भी उसने खोले दिखाए, तो वो ना उस पर बात करेंगे हम, अगर टाइम मिला तो ना, ये अभी मतलब जल्द ही करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया जैफा भाई। अभी असल यही में अभी बात मैंने टाइम भी आपको नहीं है। पहले भी बताई है
मुझे भी बच्चों ने अप्रोच किया कि हमारा प्रपोजल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग था और बिलोनिया ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा मैं 100% श्योर हूँ, आप मुझे प्रपोजल दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने वाकई चेक किया, बिलोनिया की कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी मिस्टेक है। किसी ने 3 पॉइंट्स पे कंसीडर किए हुए, टिक किया हुआ है, हेडिंग एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, करेक्टर 10,000 थे, 18,000 22,000 तक करेक्टर गए हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी मीटिंग अब एंड होने वाली है। फर्दर डिस्कशन के लिए मैंने लिंक पेस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर ग्रुप्स के लिंक भी पेस्ट किए हैं, ड्राइव का लिंक भी पेस्ट किया है। मैं हमजा भाई जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, इनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेल कर रहा हूँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में आए, मोस्ट वेलकम। डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रिव्यू करेंगे। ये वो चीजें जो हम आपके लिए कर सकते हैं, करना आपने है। हम जस्ट आपको एक पाथवे दे सकते हैं या अपना टाइम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। एंड ओवरऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and good luck for your applications. Thank you. Thank you, Mr. Jahanzeb Ashraf, for explaining all the minute